Hallelujah. We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम स्वागत करते हैं. On behalf of the Heart of Christ Church, as we are so excited this morning that God has given us His grace to see this Sunday morning. आमेन. परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि आज भी ये रविवार की सुबह हम देख रहे हैं. Hallelujah. There are so many people who've gone through different things this entire week, but God has been gracious that today you and I can stand in the presence of God to worship Him. बहुत सारे लोग अलग-अलग परिस्थिति से चल रहे हैं ये पिछले हफ्ते, पर आज प्रभु की कृपा और दया ने हमें संभाला है. Hallelujah. As you join in, kindly share this video with your family and friends so that they also can be a part of this service. और जैसे आप जुड़ रहे हैं अपने परिवार के साथ भी ये लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें. Hallelujah. Hallelujah. So as we join in to worship, let's all rise up wherever you are. और जैसे हम आराधना शुरुआत करते हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप उठिए, तैयार हो जाइए. And let's turn our Bibles to Psalm chapter 42. हम वचन खोलेंगे भजन संगीता 42. We read from verse 1 and 2. 1 और 2. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ. Hallelujah. जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ. मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा. Hallelujah. The Lord is so wonderful for us that He's given us His grace, and as a deer pants for waters, so my soul pants for you. जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसे ही मेरा हृदय भी आपके लिए प्रभु हाँफता है. How many of you can say that this morning? और कितने लोग आप में से ये कह सकते हैं आज सुबह? Can you say it that as a deer pants for water, so my soul pants for you, Lord? क्या आप भी ये कह सकते हैं कि जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा हाँफती है, वैसे मेरा हृदय भी आपके लिए हाँफ रहा है प्रभु. In the midst of troubles and in the midst of problems, in the midst of fear of other animals, but when a deer is panting for water, it's thirsty, it runs to get what it wants. कितने भी दूसरे जानवर उसके विरुद्ध में आने दो, जब वो पानी के लिए प्यासी रहती है, तो हिरनी हमेशा भागती है. The same way, no matter what problems you're going through this morning, if your soul pants for God, is longing for God, you will receive what you want. और आज भी आप जो भी परिस्थिति में गुजर रहे हैं, तो भी अगर आपका हृदय परमेश्वर के प्यासा है, तो परमेश्वर आपको तृप्त करेंगे. Hallelujah. Hallelujah. Can we all rise up together and look up to the Lord? आइए हम सब उठेंगे, हम परमेश्वर को खोजेंगे. Heavenly Father, we thank you for this beautiful morning that you blessed us with. प्रभु हम सुबह सुबह के लिए हम धन्यवाद कहते हैं आज. We thank you, Lord Jesus, for this service that everybody has joined along with us. और ये सभा के लिए धन्यवाद कि जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं. We pray, Father, that you will speak to us and speak through us. प्रभु आज हमसे बात कीजिए, हमारे द्वारा बात कीजिए. May all receive whatever they have been longing for. प्रभु जो भी वो लोग प्रभु मांग रहे हैं, वो सब वो पाए. Lord, let fulfill every desires of their hearts. उनके हृदय के हर एक जरूरतों को, इच्छाओं को पूरा And कीजिए. let this day turn to be a day out of testimonies. और आज भी आज का दिन एक गवाही का दिन बने. We thank you for you're going to do so. हम धन्यवाद कहते हैं कि आप ऐसा करने वाले हैं. We give you all the glory, honor and praise. हम आपको सारा आदर और महिमा और स्तुति देते हैं. In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं. Amen. आमेन. हालेलुया. आप सबका स्वागत करना चाहते हैं. जैसे आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए ताली बजाते हुए उत्साह के साथ हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे. आमेन. परमेश्वर अच्छा है, भला है, उसकी करुणा हमारे लिए सदा सदा के लिए है. ताली बजाते हुए परमेश्वर यीशु का नाम ऊंचा उठाएंगे. Hallelujah, Jesus. यीशु ने सच्चा कर दिया.
घड़ियाँ उसकी हवेली है। हरी चराइयों में हमें चराता है। Hallelujah. आइए ताली बजाते हुए साथ मिलकर वादी पहाड़ी बेली चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहती है। ओ वादी पहाड़ी बेली चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहती है। ओ यीशु है सच्चा घड़िया उसकी हवेली है। हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। हालेलुया। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा घड़िया उसकी हवेली है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब डर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु हमारे साथ है। आइए साथ मिलकर हम कबूल करते हुए खुशी के साथ परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाएंगे। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा घड़िया उसकी हवेली है। हरी चराइयों में हमें चराता है। आवाज उठाकर यीशु है सच्चा घड़िया उसकी हवेली है। हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया। हालेलुया आमेन। हालेलुया आमेन। हालेलुया आमेन। हालेलुया आमेन। होसाना 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 होसाना। हालेलुया। हालेलुया आमेन। हालेलुया आमेन। सभी जोरदार ताली बजाते हालेलुया आमेन। हालेलुया आमेन। हालेलुया। जैसे आप घर से जुड़ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल अपनी कुर्सी से उठ जाइए और प्रभु के राज्य में जैसे हम प्रवेश करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से उनकी महिमा करेंगे। हालेलुया।
जोरदार ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हमारा परमेश्वर अच्छा गडरिया है। Our God is the good shepherd और ये अच्छा गडरिया हमें हमेशा हरी चराइयों में चराता है, सुखदायी जलों के बीच हमें बिठाता है। वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि हम कुछ नहीं थे, पर फिर भी प्रभु ने अपना कृपा और दया हम पर दिखाया और आज भी हम उनके पवित्र भवन पर खड़े हैं। Amen. It's not because of our own merits, it's not because of our own talents or our own anything that is our own, but it's the grace of God that even today we've gathered in His holy presence. Amen. जैसे हम उनकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, ताली बजाते हुए परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाएंगे। शून्य से लेकर तूने मुझे प्रभु आज यहाँ आपकी उपस्थिति में खड़ा किया, इसके धन्यवाद यीशु। आमीन। ताली बजाते हुए उत्साह के साथ हम ये गीत गाएंगे, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाएंगे। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया मुझे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब भी आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। हालेलुया। हालेलुया। इस साथ में जब भी आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठाया यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, समकर करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। ताली बजा के इस साथ मिलकर अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। हालेलुया। खतरों और सब मुसीबतों से
आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। ये हमारा परमेश्वर है, ये उत्साह के साथ हम गाएंगे। धन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, कष्ट और सब मुसीबत से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, कष्ट और सब मुसीबत से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार, अनोखा प्यार, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। सभी ने आवाज उठाकर, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आमेन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद करेंगे। शून्य से लेकर आज भी उन्होंने हमें खड़ा किया, ये उनकी कृपा और दया है हमारे ऊपर। आमेन। हम जीरो थे, हम दलदल में थे, पाप की दलदल में जकड़े थे, पर परमेश्वर ने हमें दलदल से उठाकर आज इस चट्टान पर खड़ा किया है। इसलिए परमेश्वर की जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद कहेंगे। आज भी जैसे आप हमारे साथ लाइव पर जुड़े हैं, परमेश्वर का कृपा और दया हमारे लिए काफी है। जैसे वचन हमने पढ़ा शुरुआत में, साम चैप्टर 42, दाऊद कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा रहती है, वैसे ही मेरा हृदय आपके लिए हाँफता रहता है। हालेलुया। बहुत बार ऐसे होता है कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, पर हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा प्रेम उनके जैसा पहला था, वैसे ही वो प्रेम अनंत काल तक हमारे अंदर बने रहे। वो प्रेम का जो अग्नि है हमारे अंदर वो चलते रहे। हालेलुया। यीशु जब इस दुनिया में आए, बाइबल में लिखा है, जैसे यीशु इस दुनिया में अपनी सेवकाई कर रहे थे, जन्म से लेकर जैसे वो हमारे क्रूस पर मरे, तीसरे दिन जी उठे, उनके अंदर जो पिता के प्रति प्रेम था वो कभी कम नहीं हुआ, वो कभी ठंडा नहीं हुआ, वो कभी ऐसे फ्लक्चुएट नहीं हो रहा था। The love that he had for his father from the beginning till the end and forever, it's been the same. And in a similar manner, Jesus expects us to love the Lord our God with all our heart, soul, mind and strength. और ये वचन जैसे हम पढ़ते हैं, दाऊद कहता है कि आपके लिए मैं प्यासा हूँ। बाइबल में हम देखते हैं कि नए नियम में यीशु क्रूस पर कहते हैं मैं प्यासा हूँ। In the New Testament we see when Jesus was on the cross, he says I thirst. और यहाँ भविष्यवाणी के रूप में दाऊद कहता है वचन 2 में, My soul thirsts for God, for the living God. जीवते परमेश्वर के लिए मेरा जो हृदय है वो हाँफता है। When shall I come and appear before God? कब मैं आकर परमेश्वर के सामने आकर खड़ा रहूंगा? कब मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा? हालेलुया। ये यीशु मसीह जब क्रूस पर कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, वो कहते हैं कि जब कब, when will I come and appear before my God? बाइबल में लिखा है कि यीशु उसके पहले कहते हैं My God, why have you forsaken me? हे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों त्यागा है, क्यों मुझे छोड़ा है? वैसे ही यीशु मसीह उसके बाद कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे जीवन के परिस्थिति में ऐसे लगता है हमें कि क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ा है, क्या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, क्यों मेरा परिस्थिति बदल नहीं रहा है, क्यों लोग मेरे ऊपर ठट्ठा उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे नकार रहे हैं, मुझे नीचे गिरा रहे हैं।
यीशु जब क्रूस पर थे, बाइबल में लिखा है, सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनको तुच्छ देख रहे थे, उनको नीचा देख रहे थे। पर परमेश्वर यीशु उनके पास कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। Jesus is not communicating with the people who are standing around him. देखो तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, देखो देखो तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। वो चैलेंज नहीं कर रहे थे। He was not challenging the people who were down, laughing and mocking at him. No. यीशु उनसे कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। आपके जीवन में भी अगर ऐसे परिस्थिति में आप गुजर रहे हैं, अंधकार की परिस्थिति में, कि लोग आपको हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, पर परमेश्वर चाहता है कि हम उनसे कभी बात ना करें, अपनी परिस्थिति से बात ना करें, पर परमेश्वर खुदा से बात करें। और उस परिस्थिति में, दुख तकलीफ में भी यीशु खुदा की ओर देखकर कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्यागा? ये परिस्थिति कुछ भी हो प्रभु, पर आप अगर मुझे त्यागते हैं तो मेरा क्या होगा? वैसे यहाँ दाऊद कहता है कि प्रभु मैं आपके लिए प्यासा हूँ। I'm not thirsting for water. I'm not thirsting for the worldly things. I'm not thirsting for comfort or riches of this world. मैं ये दुनियादारी के लिए प्यासा नहीं हूँ प्रभु। मैं आपके सामने आकर खड़ा रहना चाहता हूँ। जब उस परिस्थिति में यीशु कहते कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ा है, वो तुरंत दूसरा वचन जो उनके मुंह से निकलता है, the word that comes out of his mouth next is, I thirst for the living God. मैं उस जीवन के परमेश्वर के लिए प्यासा हूँ। When shall I appear before God? कब मैं जाकर उनके सामने जाकर खड़ा रहूंगा? हालेलुया। उस क्रूस को उठाकर यीशु अपने पिता से जब खड़े हैं, वो कहता है कब मैं वापस मेरे पिता के सामने जाकर खड़ा रहूंगा, मेरे परमेश्वर के सामने, जीवित परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा रहूंगा। यही हमारा प्यास रहना चाहिए। This must be our thirst this day. We must be thirsty for God. Jesus says, all who are thirsty come to me. जो भी प्यास है तुम मेरे पास आओ, जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा। I will give you the living waters. I will satisfy you with the living waters. आज भी यीशु आपको भी पूछते हैं, जो कोई भी प्यासा है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। तुम मनुष्य की ओर भागो मत। Don't run around to man. Man keeps changing. मनुष्य बदलता रहता है। तुम मनुष्य के सामने जाकर कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी आंखों को पिता की ओर उठाओ और कहो, प्रभु मैं कब आपके सामने आकर खड़ा रहूंगा, मैं कब आपके सामने आकर आपके करीब आऊंगा, आपके प्रेम में कब मैं प्रभु खो जाऊंगा। आप मेरे as we sing this song, as the deer pants for water, he's more precious to us than gold and silver. धन होने दो, दौलत होने दो, कमाई होने दो, हमारे जीवन के पढ़ाई होने दो, टैलेंट होने दो, स्टेटस होने दो, कुछ भी होने दो, इस सबसे बढ़कर परमेश्वर यीशु हमारे लिए काफी है। Jesus is sufficient for you. His grace is sufficient for you. He is more than enough for you. आइए आवाज उठाते हुए हम अपने हृदय को खोलते हुए कहेंगे, जैसे हिरनी प्यासी है प्रभु, वैसे मैं भी आपके लिए प्यासा हूँ यीशु। desire and I long
You alone are my heart's desire, and I long to worship you. If you can sing that along with us and say, Lord, you alone are the one I long to worship. You alone are the one I look up to. You alone are the one I lay my hope and my trust upon. Can we all lift our voices and say with all our hearts, confessing the love that you have for the Lord? Desire, and I long to worship you. Jesus, we worship you, Father. I love you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. I love you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. Can we all confess it out? Lord, you are my friend and you are my brother. You are more than anyone in this world for me, Lord. If there's someone I can trust upon, there's someone that I can look up to, it's only you, Lord Jesus. Hallelujah. Can you all lift up your voice and confess it out to the Lord, saying, Lord, you are my everything. I love you, Lord Jesus. You are my friend and you are my brother. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength,
desire and I long to worship you. Can you all lift up your voice and say, You alone are my heart's desire and I long to worship you. You alone. You alone are my heart's desire and I long to worship you. And I long to worship you. And I long to worship you. I love you more than gold or silver. Only you can satisfy. I love you more than anything in this world, Father. ये दुनिया की सारी चीजों से पहले मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु. ये दुनिया क्या है? वचन कहता है कि दुनिया मिट जाएगा, पर परमेश्वर का वचन अंत तक खड़ा रहेगा. The world and its things, the fame, its glory will pass away, but the word of the Lord will endure forever and ever and ever. लहरामावी भाबा. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद प्रभु. Thank you Jesus, we love you Daddy, we love you Father. We give you the glory, we give you the honor, we give you the praise. Can we all join along and say, Jai Yeshu? सभी साथ मिलकर. जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु,
Hallelujah. We give you all the glory, बहुत Jesus. ताली बजाकर यीशु का धन्यवाद ताकि करें। हम जय करते हैं Hallelujah. प्रभु. You deserve all the glory, all the honor and all the praises, Father. At this moment as we worship you, Father, we pray and we believe, Lord Jesus, that new things have happened in your children's life, Lord Jesus. We pray, Father, that new miracles will rise up in Jesus' name, Father. प्रभु हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से हर एक जन के हृदय में, हर एक जन के जीवन में कुछ नया हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु आपने कहा जहाँ 2 और 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर हूँ। जैसे हम साथ मिलकर आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप यहाँ पर हैं। And we thank you, Jesus. There's nothing greater and nothing more important than you being present with us, Lord Jesus. प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं, पूरे समय के लिए धन्यवाद कहते हैं। प्रभु हम मांगते हैं कि जो कोई भी हमारे साथ जुड़े हैं उनके जीवन में ऐसा एक नया कार्य कीजिए जहां उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनकी सोच से बढ़कर ऐसा एक कार्य उनकी जिंदगी में कीजिए प्रभु। आप ऐसे करने वाले इसलिए धन्यवाद। वचन द्वारा हमसे बातें कीजिए ताकि हम आपके जैसे और आपके अनुसार हम जिए। We thank you, Lord Jesus, for listening to our prayer. We give you all the glory, honor, and praise. Prepare us, Lord Jesus, and in everything we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. 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 आइए जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु यीशु के लिए। Amen. Everybody, give the Lord a mighty clap offering. Hallelujah. Praise the Lord. As you join along with us, be prepared for hearing the word. और जैसे आप वचन सुनने वाले हैं, तैयार रहिए कि प्रभु आपसे वचन द्वारा बात करें। Hallelujah. And as we are here, we are going to listen to the word. We pray and I request you to share the word, this video, with your family and friends so that they also will be blessed and they also will do something for the glory of God. Hallelujah. इसको कृपया शेयर कीजिए and if any prayer request, please write it down in the comment section so that we will pray for you. जो भी प्रार्थना निवेदन है आपके लिए, आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि सर्विस के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Amen. जैसे अपने आप को हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने हम सब के लिए एक अच्छा आशीष रखा। हम विश्वास करते हैं that even today the Lord is going to do a mighty work in your life. Amen. आज भी जैसे आप परमेश्वर के वचन सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपने आप के हृदय को तैयार कीजिए कि ताकि वचन जब आए, when the word of God comes, when the seed comes, it will bear root and it will bear fruit. Amen. वो एक जड़ को पकड़ेगा और परमेश्वर के लिए फलवंत होगा। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया होकर हम प्रार्थना पूर्वक रहे, प्रार्थना में और बढ़े। सभी कलीसिया के मेंबर्स से और जो भी हमारे साथ भाई बहन लाइव में जुड़े हैं, आप सबको परमेश्वर आशीष करते रहे। विश्वास में बढ़ते रहिए कि प्रभु आने वाले दिन में और महान कार्य आपके जीवन में करे। We believe in the coming days God is going to do mighty works in your life. So therefore prepare yourselves for the great glory of the Lord. Hallelujah. जैसे वचन पासवान बांटेंगे, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में महान कार्य करेगा और हमसे बात करेगा।
जो भी कलीसिया की एक्टिविटीज है उसमें भी आप जुड़ते रहिए ताकि प्रभु आने वाले दिनों में महान कार्य आपके जीवन में करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम वचन सुनेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का भी पवित्र नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ। परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, और एक बार परमेश्वर बात किया तो वो करके दिखाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। तो आज प्रियो, जो परमेश्वर के वचन जो सुनने वाला है और देखने वाला है, आप सब आप आशीष पाने वाला है। आमीन। परमेश्वर जो कहता है मेरे नाम के ऊपर जो भी विश्वास करेंगे उनको मैं आशीष में भरेंगे करके परमेश्वर ने वादा जो किया है। हालेलुया। और इतने दिन से परमेश्वर ने आपके जीवन में कभी भविष्यवाणी किया होंगे, लेकिन अभी आप सोचेंगे अब जो ये साल भी हो गया, शुरुआत में परमेश्वर ने आपके लिए कुछ न कुछ भविष्यवाणी दिया होंगे, कुछ आशीष शब्द दिया होंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ तो आप ये सोचेंगे ये साल में मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत कुछ बात किया लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ करके आप Many of सोचेंगे। you would have got prophecies this year when you began this year, but you might be thinking and wondering why these prophecies have not yet come to pass, and you might be worried about it. लेकिन ये साल खत्म होने का अभी भी 1 महीना बाकी है। But there's yet one more month for this year to end. अब ये महीने के अंदर भी परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम कर सकता है। Even this month, God can do something new in your life. हालेलुया। हालेलुया। अपने बगल वाले में आपका जो भी रिलेटिव है, जो भी सबको बात देख के बताओ, ये महीने के अंदर भी परमेश्वर तुम्हारी आशीष कर सकता है। Turn to your friend, your family members who are sitting next to you and tell them सबने that बोले even आमीन। this month God will do something for you. यस आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आज जो परमेश्वर जो बता रहा है, हम कभी कभी अपने जीवन में आशीष क्यों नहीं आता है। Sometimes we keep wondering why my life is not being blessed. क्यों अपने जीवन में कमी घटी आते रहता है। Why I am lacking some things in my life. हम परमेश्वर का वचन भी सुन रहा है, We are listening to the word of God, लेकिन क्यों इस तरफ जो होता है, ये भी समस्या है। सच बात हम सबका मन में कभी कभी आता है। many times we hear the word, but many times we keep wondering such things. हम पुराना नियम में देख लेंगे, नया नियम में देख लेंगे। Be it in the Old Testament or in the New. एक काम परमेश्वर सिखा रहा है परमेश्वर के लिए देने के लिए। God is teaching us to give to the Lord. अगर तुम परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर तुम्हें 10 गुना 100 गुना तुम्हारे लिए देने वाला है। When you give to the Lord, God will bless you 10 times and 100 folds. आज मेरे प्रियो, परमेश्वर तुम्हारे से इस तरह से बात करने वाला है, क्यों तुम्हारे जीवन में कमी घटी आती है। Today God is going to show us why we lack in some things. तो पुराने नियम में भी हम देखेंगे तो राजा जो परमेश्वर जो इस्राएल के जो राजा लोग जो है, उन्होंने भी परमेश्वर के लिए दान दशमांश सब देता था। We read in the Old Testament that even kings used to give tithe and offerings. हम वचन में पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 31 अध्याय है, 6 वचन पढ़ेंगे। 2 Chronicle chapter 31 verse 6। And the children of Israel and Judah, who dwelt in the cities of Judah, brought the tithe of oxen and sheep, also the tithe of holy things, which were consecrated to the Lord their God, they laid in heaps. अब ये देख लीजिए किस तरफ से परमेश्वर का जो परमेश्वर के लिए जो दिया है। जो इजरायली और यहूदी यहूदा के नगरों में रहते थे, वे भी बैलों और भेड़ बकरियों का दशमांश और उन पवित्र वस्तुओं का दशमांश जो उनके परमेश्वर यहोवा के निमित्त पवित्र की गई थी, लाकर ढेर करके रखने लगे। यहूदी लोग और इस्राएल दोनों देख लो, दोनों सब जन मिलके क्या कर रहा था, परमेश्वर के सामने तो दशमांश जो दे दिया था। And we see that the children of Israel and Judah, both of them, brought tithe to the Lord. इसमें जो लिखा है मतलब
ज्यादा कितनी ताकतें उतनी ज्यादा लगा देती है उधर। It is written that as much as they were able to, that much they gave to the Lord. और नेक्स्ट वचन में In the third month, they began laying them in heaps, and they finished in the seventh month. इस प्रकार डेढ़ का लगाना उन्होंने तीसरे महीना में आरंभ किया और सातवें महीने में पूरा किया। अब ये देख लो, 4 महीने के अंदर परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना करके उसी समय में वो लगातार देते रहता था। And we see that whatever we want to do for the Lord, we want to do many things for the Lord, and they were consistent in doing and providing for the Lord. और राजा देख रहे हैं, हम दूसरे वचन में देख लेंगे, राजा आके और उनको सब जन आके देख रहा है। So in the next verse we read, and when Hezekiah and the leaders came and saw the heaps, they blessed the Lord and his people Israel. जब हेzeकिया और हाकिमों ने आकर उन डेरों को देखा, तब यहोवा की और उसकी प्रजा इज़राइल को धन्य धन्य कहा। जो देने वाले को राजा बता रहा है, परमेश्वर ये लोग आपको लोग सबके लिए आपके लिए जो रखा है उसके लिए आपको धन्यवाद हम देते करके। We see that the king blesses the people, saying that, Lord, these people have given for you, so you bless them. अब ये देख लीजिए, आपके जीवन में आशीष क्यों कम हो रहा है? इधर जो परमेश्वर जो बात कर रहे हैं, किस तरफ से उनके जीवन में आशीष डबल किया करके। Why, you might be wondering, that why am I not being blessed? And here we'll see how they have been blessed. आगे बढ़ेंगे 9। Then Hezekiah questioned the priests and the Levites concerning the heaps. तब हेzeकिया ने याजकों और लेवियों से उन डेरों के विषय पूछा। ये डेरों का मतलब इतनी ज्यादा कैसा आ गया है, किधर से आ गया करके राजा उनसे पूछ रहे हैं आचार्य के पास। The king is asking the priest that why are there so much of heap? How is it possible to have such a huge heap? क्योंकि राजा को इतना पता नहीं, इतनी जहाज सी किधर से आया करके याजक को बस आके पूछ रहा है। Since he was not aware of, he's going and asking the priests. तब पढ़ेंगे 10वां। And Azariah, the chief priest from the house of Zadok, answered him and said, Since the people began to bring the offerings into the house of the Lord, we have had enough to eat and have plenty left. For the Lord has blessed his people, and what is left is this great abundance. अजर्या महायाजक ने जो सादोक के घराने का था, उससे कहा, जब से लोग यहोवा के भवन में उठाई हुई बेटे लाने लगे हैं, तब से हम लोग पेट भर खाने को पाते हैं। हालेलुया। वरन बहुत बचा भी करता है, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को आशीष दी है, और जो शेष रह गया है उसी का यह बड़ा ढेर है। ये जो लिखा है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में जो दिन हम लोग जो लाने के लिए शुरू किया है, और उसी समय में हम लोग बहुत ज्यादा हम लोग खा के पी के मतलब जो हम एकदम अच्छी तरह हम खाने के बाद में भी हमारा आशीष बढ़ गया करके। The priest says that after the children of Israel have brought and given to the Lord, they have given so much that in spite of eating and even finishing it off, there's still abundance left over. अभी इसमें जो लिखा है, जो बराबर सुनिएगा, जो परमेश्वर के देने के लिए शुरू किया, वही दिन से इनके जीवन में भी आशीष किया है। The moment the people have started providing and giving to the Lord, that moment onwards they have been blessed. आज अपने कलीसिया में भी बहुत जन टाइस एंड ऑफरिंग देते रहते हैं, इतने तकलीफ में भी। We, even in our church, there are many people who provide for tithes and offerings in spite of what they go through. लेकिन परमेश्वर खाली हाथ देने वाला नहीं है, आशीष के ऊपर आशीष देने वाला है। And God is not a God who's going to, send you empty-handed, but He's going to bless you upon ये blessings. वचन में आप और एक बार इसके बारे में याद करो, जो दिन से परमेश्वर के मंदिर में जो लाने के लिए शुरू किया है, वही दिन से उनके जीवन में भी आशीषों के ऊपर आशीष बढ़ गया है। From the moment that they started providing to the house of God, that moment onwards,
blessings started flowing over their lives. जो परमेश्वर को देने के लिए क्या मन चाहिए, सच्चा मन चाहिए What do you need when you give to the Lord? और You कुछ- need a sincere heart और खुशी के साथ देना है। and with joy. परमेश्वर ये नहीं कहते तुम रोके मेरे पास आ जाओ। God is not telling you that you weep and mourn and come to me. अगर तुम रोते रहते परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर रोते रहते तुमको देने वाला है। If you grumble and crib upon and then give your offering to the Lord, He'll also grumble and give it back to you. ऐसा करने वाला नहीं है परमेश्वर। आप दे नहीं दिए तो भी परमेश्वर आशीष करने वाला है। Obviously, our God is not such a God. Whether you give or not, He's going to bless you. आप ये देख लो नेक्स्ट वचन में जो है, Now Hezekiah commanded them to prepare rooms in the house of the Lord, and they prepared them. तब हेzeकिया ने यहोवा के भवन में कोठरियां करने की आज्ञा दी और वे तैयार की गई। तब लोगों ने उठाई हुई बेटे, दशमांश और पवित्र की हुई वस्तुएं सच्चाई से पहुंचाई। हाँ मैं बस ये क्या किया है, सच्चाई से, मतलब जो देने की चीजों में परमेश्वर का भवन में सच्चाई से लाके रख दिया है। We see that they brought the offerings faithfully. God is looking at the faithfulness that you have towards giving to the Lord. मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष देने वाला है। Dear ones, God is going to bless you. तुमने जो कोई काम करते होंगे, You might be working कुछ न कुछ जो करते होंगे, some kind of job. किधर न किधर से कुछ इनकम तो आते रहते हैं, Somewhere you might be earning from. लेकिन आपने परमेश्वर के क्या किया है? But what have you done for the Lord? आपने कितने दिया है? How much have you given for the अगर Lord? आपको पास नहीं है तो आपने क्या किया है? If you did have, what did you do? अगर आपको पास देने के लिए नहीं है तो आपको क्या करना है? परमेश्वर को देने के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर मुझे आपके लिए करना है, आपके लिए करने के लिए मुझे ताकत दे, तुम्हें मुझे आशीष दे करके परमेश्वर को पुकारना है। And if you are left with nothing, you have no income, then you need to pray to the Lord and ask the Lord, Lord, bless me so that I can provide for you. Bless me so that I can provide to the house of God. आपने परमेश्वर को मंदिर के लिए क्या क्या कमी कटी करके आपने कभी सोचा क्या? Have you thought about what are the things that the house of God lacks? हम हमेशा अपने घर के लिए, अपने के लिए जो हम समझता है, सोचता है, उसके बारे में हम चिंता करते हैं। We are always concerned and worried about ourselves and our houses, that what we lack and what we need. आज मेरे प्रिय परमेश्वर तुम्हारे से यही बात करता है, तुम परमेश्वर का मंदिर के बारे में याद करना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में याद करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कमी कटी है हमारे कलीसिया में, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए हमारे कलीसिया के लिए क्या कमी कटी, हम क्या कर सकते हैं करके आपको याद करना है। Today the Lord wants to tell us that we need to be concerned of the house of God, for the church of God, and we need to see and pray that, Lord, what can I do to build the church? What can I do to give to the church? What can I do to build it grow? परमेश्वर के लिए देने से कभी रोना नहीं। You must never be depressed when you give to the Lord. आप कितने देंगे उतने आप आशीष पाने वाला है। How much ever you give to the Lord will bless you. अब ये 10% आप जो परमेश्वर के लिए टाइज दे रहा है, लेकिन परमेश्वर 10% का हिसाब करने वाला नहीं है। Many of us, calculate 10% of the tithe, but God is not calculating here the 10%. आप कोई भी ये देखने वाले, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चों, आप कोई भी कलीसिया का होने दो, लेकिन आपका अपने अपने कलीसिया के लिए जो क्या कर सकता है, क्या कमी घटी है, उसको आपको देना जरूरी है। My dear ones, whichever church you belong to, it is very important that you provide for that church. You give your tithe and offering to that church. क्योंकि वो जो परमेश्वर राज्य के लिए करना जरूरी है। Because it's important to build the kingdom of God. अब कोई क्या बताएंगे, हमने क्या क्यों नहीं किया, हमने करता है, इससे आगे क्या करना है करके कोई ऐसा सवाल भी पूछते हैं। There are many who question that what should I do? हम वचन में देख लेंगे, मलकिया चैप्टर 3 वर्स 6 से लेके पढ़ेंगे। मलकिया चैप्टर 3 वर्स 6। For I am the Lord, I do not change, therefore you are not consumed, O sons of Jacob. परमेश्वर जो कहते हैं, और तुम्हारे जीवन में परमेश्वर आशीष करने वाला है, और परमेश्वर मतलब छोड़ने वाला नहीं है, जो वादा किया तो करने वाला है। और वो जो कहते हैं
Malachi chapter 3, verse 6. Yes, yes. For I am the Lord, I do not change, therefore you are not consumed, O sons of Jacob. कोई बोल रहा है हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वचन जो कहता है तो परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, उनके याकूब के संतान को वो आशीष देने वाला है। And God is saying that He is a God who doesn't change and He will provide. क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। आप सोचेंगे हम कुछ भी नहीं है, नहीं 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 नहीं, आपको परमेश्वर आशीष किया होंगे। You might be thinking you are destroyed, you are finished, but no, God is yet to bless जो you. परमेश्वर जो दे रहा है उसके समाधान नहीं होंगे। What God has given you might have not taken care of it. जो चीज आपने जो परमेश्वर ने कुछ आशीष के लिए जो दिया होगा आपने खोया होंगे। What God had blessed you, you would have lost it. आपको बुद्धि के कारण, Maybe by your wisdom. आपको मतलब बुद्धि से सही सलामत आपने अपने बुद्धि यूज नहीं किया तो आप लॉस हो सकता है, अपने जीवन में नष्ट हो सकता है। By lack of wisdom and by not doing it well, you would have lost what you had got. जो परमेश्वर के नापसंद काम कुछ किया होंगे, You would have done something that was detestable to God. ये हमें याद करना पड़ेगा। You need to remember them. हाँ, जो परमेश्वर जो कहता है मैं मेरे संतान को आशीष देने वाला संभालने वाला करके बताया है। And God says that I will bless my people. और ये आगे पढ़ेंगे, वर्स 8 पढ़ेंगे, Will a man rob God? 1 मिनट सॉरी 7 पढ़ेंगे। Yet from the days of your fathers you have gone away from my ordinances and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you said, in what way shall we return? अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। ये देखो परमेश्वर जो कहता है तुम मेरे बस आ जाओ, मेरे बस फिरो, तब मैं तुम्हारे बस आएंगे करके। The word says, God is saying, return to me and I will return to you. सेनाओं के यहोवा की यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे। आज यही बात है, सब जन यही समझते हैं हमने क्या गलती किया, हम सही सलामत जी रहा है, हम सही सलामत प्रार्थना करता है, कलीसिया में अटेंड करते करके यही सवाल आता है। This is what many of them question today, that what wrong have I done? Why am I struggling this way? What mistake did I do? What did I not do that the Lord told me to do? यीशु मसीह पृथ्वी में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने जो सेवक चालू कैसे किया, उसी समय जो बताया मन फिराओ करके। When Jesus came to the earth, the first thing that he taught was repent. उसी ने सब जन क्या बताया, हम किस में मन फिराना है। And they asked, how do you repent? तो अपने आप को एक बार सर्च कर लीजिए, तब मालूम पड़ेगा आपने कौन सी चीजों में कुछ गलत जा रहे हैं, गलत करते हैं, गलत बात करते करके अपने आप को सर्च करने समय में आपको पता चल जाएगा। अगर आपका पास पवित्र आत्मा है तो So we need to ponder and think about it and ponder and search for yourself. What have you done? If you are filled with the Holy Spirit, that time you can see for yourself what are the things that you did detestable to God. अगर पवित्र परमेश्वर का जो आत्मा है आपको बस आने के समय में वो बताएंगे ये तुम गलत करते हो, ये तुम रॉन्ग करते हो, तो वो बताएंगे आपको। When you are filled with the Holy Spirit, He will teach you and tell you what the wrongs that you have done and what right you need to do. यहाँ जो लिखा है हम लोग कौन सी चीजों में से आपको बताना है, कौन सी चीज हम गलती करके कुछ सवाल आ रहा है। And here we see that people question saying that what wrong did I do? How do we return back? वचन में लिखा है नेक्स्ट वचन में Verse 8, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have you robbed? In tithes and offerings. क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की बेटों में। दसवां और उधर के देते में कोई देता नहीं, सही सलामत देता नहीं, पैसा आने के बाद वो भूल जाता है। Many people do not give tithes and offerings to the Lord correctly because when they receive money, they just spend it out
and they forget about it. और ये पूछ रहे हैं, हम कौन सी चीजों में आपको धोखा दिया करके परमेश्वर से उल्टा जवाब पूछ रहे हैं। And people are asking, when did we do this wrong thing? When did we rob you? तो परमेश्वर को जो नहीं दिया तो क्या बता रहा है परमेश्वर ने उनको, परमेश्वर जो वर्ष 9 में जो लिखा है, And verse 9 talks about what the Lord is saying about those who don't give to the Lord. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। पूरा जाति ऐसा करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करने मेरे प्रियो। The whole world might be doing this, but we shouldn't be doing it. आपको मन में परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के मंदिर के लिए क्या करना है, करके हमेशा सोचना जरूरी है। You must always have this in your heart, that what should I do for the church, for the house of God. आपके घर के अंदर कोई चीज का कुछ कमी घटी होगी, देखेंगे कुछ ये चीज हमारे लिए जरूर है। If there's something that you want in your house, there's something that you lack and you need, आप क्या करेंगे? what would you do? कुछ ना कुछ करके वो खरीदेंगे, कुछ करेंगे। You do something so that you'll fulfill that need. तो परमेश्वर का मंदिर हम सबका है। And the house of God, the church, is for all of us. ये परमेश्वर का मंदिर अपने शरीर के करके परमेश्वर जो बता रहा है, उस तरफ से परमेश्वर के जो मंदिर है, वो हम सबका अधिकार है, हम सबको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। We are the body of Christ, and it's our responsibility to do something for the house of God. आगे वचन में पढ़ेंगे। Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing, that there will not be room enough to receive it. सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर चैलेंज करता है, देख लीजिए। God is challenging us in this. तुम मेरे भवन में लेके आ जाओ, तब देखो मैं स्वर्ग के राज्य से तुम्हें देगा कि नहीं देगा, तुम देखो करके। He says, try me in this, bring your tithes into my house and see how I will bless you. क्योंकि ये जरूरी है, परमेश्वर का आज्ञा है, परमेश्वर के देने के लिए परमेश्वर जो बता रहा है, तब परमेश्वर आप देखेंगे कि मेरा बेटा, मेरे बेटी कितनी खुशी के साथ, कितनी तकलीफ से मेरे को जो लारा करके देखे, परमेश्वर उसको 100 गुना आशीष करने वाला है। It is a command by God that we have to give to the house of God, to the church, because God will look at you and say, this is my child, in spite of all these worries and problems, joyfully my child has brought this to my house. और ये देख लो, इस समय से आप परमेश्वर के देने के समय में, आपके जीवन में कुछ नष्ट आने के समय में क्या होने वाला है? When you give to the Lord and yet you come across any losses, what happens? आप जो जॉब करते होंगे, वो जॉब को ऊपर आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आप जो जॉब जो करते हैं, वो जगह में कुछ रुकावट आए तो क्या वो करने वाला है? Suppose, for instance, you are working and there's some hindrance for you against your job. वो आपके लिए जो खिलाफ जो आने वाले समय में परमेश्वर क्या करने वाला है? And when there are situations that are rising against you, what the Lord is going to अब do? याद से सुनिएगा, आप परमेश्वर के देने के समय में आपका जो भी काम है, जो भी बिजनेस है, काम है, जो भी आप जो करते हो, उसका खिलाफ, उसको भी कुछ अगेंस्ट में जो भी चीज आने के समय में परमेश्वर क्या करने वाला है? So when there, be it you're doing business or your jobs, and when there are things, situations standing against you, what God is going to do? Verse 11. And I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the wine fail to bear fruit for you in the field, says the Lord of hosts. मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा। वाह, ये देख लो, आप याद रखो, आप सोचेंगे मैं मेरा परमेश्वर तो किया तो मेरा क्या होगा, नष्ट होगा कि क्या करके आप कभी-कभी सोचते रहेंगे। And when the times when you have been tormented against, and you might be thinking, I'm going to get destroyed, but this is what God says. मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं की यहोवा की यह वचन है।
सेनाओं का यहोवा का वचन हाँ मैं सबसे बोलेंगे हाँ मैं आमेन। This is the word from the Lord of hosts. इसमें ये जो लिखा है ना अभी जो हम जो पढ़ा है लास्ट चैप्टर में जो लिखा है जो उनके जो जो बेनिफिट जो प्रॉफिट जो आशीष जरूर परमेश्वर देने वाला है And God says here that He will rebuke those who talk against you and who work against you, and He's not going to let any of your benefits be destroyed. He'll not destroy the fruit of your ground. In fact, He'll let you reap a profit. हालेलुया परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है इसके वचन के ऊपर हम विश्वास करके आने वाले दिनों में परमेश्वर के मंदिर के लिए परमेश्वर के लिए क्या कर सकता करके आप कोशिश कर लीजिए आप प्रार्थना कर लीजिए परमेश्वर तुम्हें देने के लिए देंगे God is a God who blesses us. So in the days to come, turn the ways and focus more on what you can do for building the house of God, what you can do to provide for the house of God, to give to the house of God, and God will bless the work of your आप hands. ये सोचेंगे मेरे को देने के लिए नहीं है करके आप ये सोचेंगे You might be thinking and wondering, I don't have anything to give. आप इस तरफ सोचो परमेश्वर को देने के लिए परमेश्वर मुझे दीजिए परमेश्वर मुझे आशीष कर लीजिए परमेश्वर मैं परमेश्वर के लिए ये करने वाला है वो करने वाला है, अपने मन में निर्णय लीजिए Start taking decisions that in spite of if you don't have anything right now, start taking decisions saying that I'm going to, Lord bless me more so that I can do something for the house of God, so that I can give to the house of God. ये जो नया नियम में देख लीजिए अब एक्ट्स चैप्टर 2 कोरिन्थियों चैप्टर 8 वर्ष 1 से पढ़ेंगे 2 Corinthians chapter 8 verse 1 onwards. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely giving. अब हे भाइयों हम तुम्हें परमेश्वर की उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकुदियों की कलीसियों पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। आप ये देख लीजिए ये जो मकेदोनिया जो कलीसिया में क्या हो गया वो लोग काफी मतलब जो क्लेश की बड़ी परीक्षा में और तकलीफ में अब ये समझ लो वो लोग सब जब बहुत कमाया उसमें से दिया करके वो नहीं लिखा है काफी तकलीफ से समस्या से प्रॉब्लम के साथ में और उनके जीवन में परीक्षा के समय में मतलब परीक्षा क्या होता है टेंशन तकलीफ जो प्रॉब्लम आने के समय में हम कभी कभी गिर जाता है लेकिन उसी समय में भी उन्होंने मकेदोनिया जो सभा जो कलीसिया से वो क्या किया है बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बड़ी आनंद से हाँ हमें सबसे ये बोले बड़ी आनंद से परमेश्वर दिया मतलब तकलीफ में कंगाल के समय में प्रॉब्लम के समय में समस्या के समय में परमेश्वर देने के समय में आनंद से जो दिया है Hallelujah. We read here that the church of Macedonia, in spite of the troubled situations and afflictions that they went through, in spite of having some poverty and problems in their lives, what they did was joyfully and wholeheartedly, liberally, they provided for the church of Macedonia. अब वर्ष 3 में देख लीजिए मतलब जो उनका ताकत से ज्यादा दिया करके उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। We see here that they gave whatever they had to the church of Macedonia beyond their ability, and not just how much they can give, but even beyond what they could afford. पौलुस खुद बता रहा है मैं गवाह है क्योंकि उनके सामने ये सब हो रहा है Paul himself is giving a testimony, अब आगे देख लो वर्ष 4 imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार-बार बहुत विनती की। अब परमेश्वर का जो सेवक करने वाले के ऊपर वो लोग बहुत दया किया है उनको कुछ ना कुछ करने के लिए मतलब समझ लीजिए कोई खाना है जो भी समस्या है परमेश्वर को जो सेवा करने वाले सबके लिए वो लोग दिया है।
we see that they provided for the saints of God who were ministering to God, and these people provided with gifts and fellowships. और ये जो पौलुस जो बता रहा है वो लोग दे रहा है, लेकिन हम लोग मना किया तो भी नहीं, ये नहीं चाहिए, क्योंकि वो सामने वाला किस तरह तकलीफ से दे रहा है, कितनी प्रॉब्लम से दे रहा है, अगर के समझ के पौलुस बता रहा है मुझे हमें नहीं चाहिए करके, लेकिन फिर भी वो लोग विनती करता है ये ले लो करके। Paul says that even when they said that we don't need this much gifts from you, we don't want, because he knows that they used to give out of a lot of problems, but they were insistent to give to the Lord. ये जो चीज पैसे से और कोई कार्य से नहीं है। अब नेक्स्ट वचन पढ़ लीजिए, वर्स 5 में पढ़ लीजिए, वो क्या किया कर रहा है। It's not about money or the riches that they gave. We read verse 5 about what exactly they gave. And not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. Oh, hallelujah. और जैसे हमने आशा की थी वैसे ही हम, वरन उन्होंने परमेश्वर को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हालेलुया। Hallelujah. आज परमेश्वर तुम्हारे से यही मांग रहा है, परमेश्वर को ऊपर सरेंडर करने के लिए। This is what the Lord is telling you today. First, give yourself to the Lord. अगर आप परमेश्वर के ऊपर अपने आप को हवाले करने दें, परमेश्वर तुम्हारे कार्य करेगा। When you give yourself first to the Lord, He starts blessing you. आप ये बताइए, कोई आदमी का बस बोलता है मैं आपका नौकर है, आपका गुलामी है, आपका what do you call, मतलब आपका आपके लिए मैं सब कुछ करने की तैयार करके सरेंडर किसी के ऊपर जाने के टाइम में। When somebody comes and surrenders to you, say your worker or some slave says, "I'm ready to do anything for you." आप बोलेंगे हम सब कुछ आपके लिए करने, आप जो भी करते हैं मैं करूंगा, आपके लिए मैं जी रहेगा करके कोई भी ऐसे सरेंडर करने के समय में। When somebody surrenders and gives themselves up, says that I'm ready to do anything for you, वो जो आदमी क्या आपके लिए कुछ नहीं करेंगे? will that person not bless the other person? वो सोचेंगे ये इंसान, ये मनुष्य मेरे ऊपर विश्वास करके, मेरे ऊपर रेस्पेक्ट करके, मेरा आज्ञा पालन करके इतनी सरेंडर के, तो मैं इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। Won't the master be, with gratitude? Won't he feel that this guy, this person who has surrendered himself to me, who's given up himself to me, won't he do something for him? परमेश्वर ने कहता है तुम कंगाल होने के लिए परमेश्वर अपने आप को कंगाल हो गया है। So that you will not turn to poverty, God Himself lowered Himself. हमें आशीष देने के लिए वो आज वो अपने जीवन में आ गया है। He has come into our lives. बस 9 में पढ़ेंगे। For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. तुम हमारे पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाए। हमें आशीष देने के लिए, हमें धनी होने के लिए वो कंगाल हो गया है। So that we might become rich, He became poor. हमें आशीष देने के लिए वो स्वर्ग राज्य से नीचे आया है। So that He will bless us, He left His heavenly kingdom. वो स्वर्ग राज्य में रहने वाले जो परमेश्वर जो पृथ्वी में आके इंसान के जैसे, जो अपने जैसे, जो कितनी समस्या है, कितनी तकलीफ है, हम जो बीत रहा है, उस तरफ से परमेश्वर यीशु मसीह जगत में आके हमें बचाने के लिए जो आया, अपने जान दे दिया है। God who lives in the heavenly kingdom left it, came down to the earth and lived like a man, going through every problem that any man can go through, so that we will receive that blessing that God has wanted to give us. आज जो परमेश्वर जो कहता है हम सब धनी होने के लिए, आशीष पाने के लिए परमेश्वर ने दुख उठाया, परमेश्वर ने कंगाल होया, अपने कंगाल, हम जो कंगाल है वो कंगाल को वो उठा के वो कंगाल हो गया है हमें आशीष देने के लिए। The word says that He became poor, and so that through His poverty, instead of we being poor, we being suffering with poverty, He took it upon Himself so that we might be rich. आज मेरे प्रिय परमेश्वर जो कहता है मैं तुम्हें आशीष देने वाला करके परमेश्वर जो वादा किया है। God is a God who promises us that He will bless you. एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर का एक शब्द भी व्यर्थ नहीं होता है। Always remember, none of
God's word will ever go empty-handed. परमेश्वर का वचन को पर विश्वास करो Believe in the word of God. और परमेश्वर का आज्ञा पालन करो। Obey the word of God. आप परमेश्वर को पर विश्वास करने से सिर्फ नहीं होगा, It's not just enough to believe and have faith in God. परमेश्वर का आज्ञा पालन करना आपके जीवन में कार्य करना पड़ेगा। It's important to obey His word and live it. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? What do you have to do first? जो परमेश्वर के जो नापसंद काम आप नहीं करना है। You need to get rid of the things that God dislikes. हालेलुया। और Hallelujah. सेकंड, जो परमेश्वर के जो खिलाफ कभी बात नहीं करना है। You shouldn't talk anything against God. अब परमेश्वर कुछ भी बोले तो हमें हाँ करना है। Whatever God says, we say yes. उसके बारे में जो यिर्मयाह में गीता में जो लिखा है, एक जो अपना पोटर जो किस तरफ जो है, जो उन्होंने नया बर्तन बने थे वो खराब हो जाता है, फिर भी वो नया कर सकता है। Just like how Jeremiah says that how a potter, he does the pot again, and once it gets destroyed, he rebuilds it again. अगर आपके जीवन में कुछ टूटा हो गए, आपके जीवन नाश हो गए होंगे, लेकिन अभी भी परमेश्वर आपको नया बांध सकता है। Your life would have been broken or destroyed, but God can build it again. और जो वचन में जो कहते हैं, उनका वचन ये शब्द भी व्यर्थ नहीं होगा करके हम विश्वास करते हैं। And His word says, and we believe that none of His words will go empty-handed. आज के समय में बहुत जगह में काफी समस्या चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, पैसे के प्रॉब्लम है और कोई बीमारी ज्यादा चल रहा है। हर क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम से इंसान गुजर रहा है। In today's time, everybody in so many places are going through financial crisis, sicknesses and diseases, and things are just increasing day by day. लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में रह के हर मुसीबत से, हर समस्या से हमें छुड़ाएंगे। But God will be with us and help us to go through, and yet will save us. तो आने वाले दिनों में प्रभु हम सबको आशीष करने वाला In the है। days to come, God is going to bless us even more. उसका वचन को विश्वास कर लीजिए। Believe in the word of God परमेश्वर के राज्य के लिए किस तरह बढ़ाना है उसके बारे में याद कर लीजिए। and see and meditate of how you can provide and build the kingdom of God. तो परमेश्वर को देने के लिए कमी मत करो। Don't keep your hands behind to provide for the Lord. परमेश्वर को देने से हम आशीष पाने वाला है। When you give to the Lord, you're going to receive blessings. परमेश्वर के वचन का अनुसार परमेश्वर जो लास्ट में क्या बता है, हमें टेस्ट करो करके, मतलब जो परमेश्वर को दसवां और ऑफरिंग देने समय में परमेश्वर जो कहता है, तुम देखे टेस्ट करो मैं तुम्हें किस तरफ से आशीष देने वाले की है कि नहीं। And as we read the word, God says that test and see that when you bring your tithe and offering to me, test and see whether I will bless you or वो not. जिनका गवाह है, मैंने परमेश्वर के लिए हर महीना हर टाइम देते रहते और देते रहते, लेकिन हमें आशीष से मिल गया करके मिल रहा करके वो जिनका गवाह है। Many people have testified so many times that because I started giving to the Lord has kept blessing me. आपके जीवन में भी वो गवाह आने वाला Even है। that testimony can come for you. आपके परिवार में भी वो आशीष आने वाला है। That blessings will come even in your family. आमीन। Amen. हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray. प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। Lord, we thank you. आज के दिन जो प्रभु आप आशीष देने वाले परमेश्वर करके आपने जो बताया है, You have taught us today that you are a God who blesses us. आपके लिए जो प्रभु देने के लिए सबको हृदय में मन में आप दीजिए प्रभु। Lord, we pray that you bless each one to provide for you. आपके लिए देने की मन दीजिए प्रभु। Give them a heart to give to you. आपके लिए देने के लिए कुछ कमी नहीं करना चाहिए प्रभु। Lord, they should not lack in anything in giving to you. जो किस तरफ से जो एसेकिया राजा के समय में किस तरफ जो इस्राएल को और यहूदी लोग जो दे के आशीष पाया है, उस तरफ से सबको जीवन में आशीष पाने के लिए प्रभु मदद कर लीजिए। Just as the times of Hezekiah, as the children of Israel and Judah brought to you and you blessed them in abundance. जो काम करता है, जो क्षेत्र में प्रभु आप उच्च स्थान में प्रमोशन दीजिए प्रभु। In the same way, Lord, who we pray that you bless them, all those who are working, bless them with promotions to greater heights. जो मलिकिया में जो लिखा है, फिर जो प्रभु जो आपका जो बेटे को देने वाला उनका बेटा बेटी के ऊपर जो बाधा आता है, जो भी तकलीफ देने वाला हर समस्या को दूर कर लीजिए प्रभु। Just as written in Malachi that you will devour, you will remove all those who are devouring against your children. जो काम करता है टेंशन के बिना
अच्छी तरह से काम करने के लिए उनको सर्कमस्टेंस ऐसा बनवा के दीजिए प्रभु। Lord, we pray that you create situations that those who are working, let them work without any problems. जो काम करता है वो काम में आशीषों से बदल दीजिए प्रभु। Bless the work that your children are working. ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का बेटी है, ये आराधना जो करने वाला है, ये परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर करके आपको नाम ऊंचा उठाने के लिए दूसरे दुनिया वाला बोलने के लिए मदद कर लीजिए प्रभु। Let the world praise and talk about your children, that these are the children who worship the Lord. जो चीज के लिए जो प्रार्थना जो करता है, जो चीज के लिए मांग रहा है, आपका बेटी का प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। Whatever your children have been praying for, we pray, Lord, that you will listen to it. आज मेरे प्रिय 2 मिनट का समय दे रहा है, सब जन खड़ा हो जाओ, सब जन खड़ा हो जाओ। आपके जीवन में जो भी कमी कटी परमेश्वर इसी समय में चेंज करके आशीष से बदलने वाला है। जो देखने वाले सुनने वाला मेरे भाई मेरे बहन मेरे बच्चे सब वो खड़ा हो जाओ और अपने आप को सरेंडर कर लो। I request all the brothers and sisters to stand up for just 2 minutes, and whatever problems you have, just confess it to the Lord. जो वचन में जो लिखा है, मेरे पास आओ करके जो परमेश्वर जो बता रहा The है, word says that you come to me. परमेश्वर के पास आएंगे। Let's go to the Lord. अपने आप को सरेंडर कर लो। Surrender ये yourselves. परमेश्वर मैं नथिंग, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं है। Confess and say, Lord, I'm nothing. हम अपने आप को हवाले करता हूँ करके परमेश्वर को बन जाओ। And surrender yourself to the Lord, saying, Lord, I give myself to you. अगर आप परमेश्वर पर अपने आप को हवाले करने के समय में परमेश्वर तुम्हें खाली हाथ से छोड़ेगा नहीं है। When you surrender and commit yourself to God, God is not going to let go of you. तुम्हारे जीवन में क्या क्या चाहिए परमेश्वर जानते हैं। Whatever you need, God knows. परमेश्वर आज से तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला है। From today, God is going to do something new for you. सब जन एक बार प्रार्थना करो, सब जन मुंह खोल के you pray Everybody lift your voices सब जन मिलके and let us all lift up our जल्दी voices जल्दी से and जल्दी परमेश्वर का भी आशीष आने वाले समय में receive the परमेश्वर का blessings that पवित्र God is- आत्मा छूने के समय वो यही हो गया है। आज नया चंगाई तुम्हारे जीवन में करने वाला है। जो भी तुम मांगो परमेश्वर को ऊपर अपने आप को सरेंडर करके परमेश्वर से मांगो। Surrender yourself right now to the Lord, that whatever healings, whatever blessings you need, that God will provide for you today, this very moment. Open your mouths and pray, church. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु आपको हम धन्यवाद करते प्रभु, हमारा प्रार्थना सबका प्रार्थना आपने सुन लिया, उसके धन्यवाद We करते thank प्रभु। you, Lord, for listening to each of our prayers. आज आपने नया कार्य सबके जीवन में कर दिया है। We thank you for you have done something new today आज in your नया children's कार्य lives. शुरू कर दिया आपने You have started something new in the lives of your children. यस लॉर्ड, आपको वचन का अनुसार प्रभु एक गवाही के जीवन सबके जीवन में दीजिए प्रभु। Yes, Lord, according to your word, let there be a life of testimony in your children. आपने हम सबको प्रार्थना सुन लिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते We हैं thank you for listening to our prayer. आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी कलिसिया चालू करने के लिए प्रभु मदद कर दीजिए In the प्रभु। days to come, we pray that let your house be built. जल्दी से जल्दी प्रभु स्टार्ट करने के लिए आप मदद कर लीजिए प्रभु। We pray that उसके लिए जो भी रुकावट है हर रुकावट को दूर कर लीजिए प्रभु। we pray, Father, that every hindrance be cancelled in Jesus' name. सब परिवार से साथ खुशी के साथ आनंद के साथ आके आपको भवन में आपको धन्यवाद करने के लिए सबका परिवार में आशीष कर लीजिए प्रभु। Create situations that every person will come along with their families to church. प्रभु यीशु मसीह का जी पवित्र नाम से मांगते हैं, In Jesus' name we pray. आमीन Amen. आमीन। परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया है God has answered your prayer. और परमेश्वर आपको उत्तर दे दिया है। God has answered. विश्वास के साथ ताली बजाकर परमेश्वर से धन्यवाद करेंगे। Let's give the Lord a clap offering, thanking Him for all the wonderful things that He's going to do in your life. Praise the Lord, hallelujah. हम सब उत्साहित हैं आज की परमेश्वर हमारे बीच में है और कार्य कर रहा है। आमेन।
हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। आप सबका धन्यवाद कहना चाहते हैं कि जैसे आप हमारे साथ इस लाइव सर्विस में हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च की वहाँ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत करते हैं, आपको हम आशीष करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आने वाले दिनों में भी प्रभु महान कार्य, आने वाले महीने में भी, जैसे पासवान ने कहा, ये लास्ट मंथ भी परमेश्वर आपके लिए एक महान कार्य करने के लिए योग्य है। तो उत्साह के साथ रहिए, चर्च की एक्टिविटीज में जुड़ते रहिए, प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए। कंटिन्यू टू प्रे फॉर वन अनदर, बी एक्टिव इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द चर्च, टेक टाइम आउट एंड ग्लोरीफाई द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कलीसिया के मेंबर्स से भी रिक्वेस्ट है कि सभा के बाद आप जूम मीटिंग में भी जुट जाइए ताकि परमेश्वर की मेज में हम आगे बने। परमेश्वर महान है, आज भी हमारे सबके जरूरतों को पूरा करने के लिए योग्य है। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? Yes, we believe it that God can do something great in your life. Therefore, continue to pray, continue to give God the glory. Amen. आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। We'll do the final prayer. You can repeat it after me. तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमेन। स्वर्ग राज्य से पृथ्वी में आके जीवन देके हमें बचाया प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, संसार को पर इतना जो प्रेम किया पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्य और अभिषेक हम सबका साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। खुशी के साथ प्रभु यीशु मसीह की ताली बजा के प्रभु धन्यवाद करेंगे। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। God bless you.